This is solution video, class 10th, subject geography, chapter 1, resource and development. So students, let's start solution. First question is multiple choice question. Which one of the following type of resource is iron ore? A, renewable, B, flow, C, biotic, D, non-renewable. Answer is that D, non-renewable. Now second question, under which of the following type of resource can tidal energy be put? A, replenishable, B, abiotic, C, human made, D, non-recyclable. Answer is A, replenishable. Which one of the following is the main cause of land degradation in Punjab? A, intensive cultivation, B, over irrigation, C, deforestation, D, overgrazing. Answer B is correct, over irrigation. Now next question, question number 4, in which one of the following states is terrace cultivation practiced? A, Punjab, B, Haryana, C, plains of Uttar Pradesh, D, Uttarakhand. Answer D is correct, Uttarakhand. Now fifth, in which of the following state is black soil found? A, Jammu and Kashmir, B, Rajasthan, C, Gujarat, D, Jharkhand. Answer C is correct, Gujarat. Now question second, answer the following question in about 30 words. So let's start. First off, second question, name 3 states having black soil and the crop which is mainly grown in it. Answer is Maharashtra, Madhya Pradesh and Chhattisgarh are some states where black soil is found and cotton is the main crop grown on black soil. Answer C. What type of soil is found in the river deltas of the eastern coast? Give 3 main features of this type of soil. Answer is alluvial soil. Alluvial soil is found in the river deltas of the eastern coast. Alluvial soil is rich in potash, phosphoric acid and limestone. It has high water retention capacity and it's highly fertile soil. तो इसमें इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं. Alluvial soil is found in river deltas of the eastern coast. ईस्टर्न जो रिवर डेल्टा के जो ईस्टर्न कोस्ट है उसमें क्या alluvial soil मिलता है. alluvial soil is rich in potash. alluvial soil में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? तो पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइमस्टोन मीन्स चूना. लाइम मीन्स चूना. इट इज़ अ हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी एंड इट्स हाईली फर्टाइल सॉइल. ये क्या है? बहुत ही फर्टाइल सॉइल है और इसमें वाटर रोकने की क्षमता होती है. नाउ आंसर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड, आंसर ऑफ दिस, व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज. हिली एरियाज में जो है कि सॉइल इरोजन को मीन्स मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या स्टेप लिया गया है? टेरेस फार्मिंग एंड शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन कैन बी डन टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन इन हिल एरियाज. हिल एरियाज में टेरेस फार्मिंग और शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन के थ्रू क्या है? सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जाता है. नेक्स्ट, आंसर 4, व्हाट आर द बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स. गिव सम एग्जांपल्स. सो बायोटिक रिसोर्स में क्या होते हैं? जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म इन आवर इन्वायरमेंट आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्स. हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो बायोटिक रिसोर्स हैं. फॉर एग्जांपल ट्रीज, एनिमल, इंसेक्ट एट्सेट्रा. अब आते हैं अबायोटिक रिसोर्स. ऑल नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट आर टर्म्ड एज अबायोटिक रिसोर्स. फॉर एग्जांपल अर्थ, एयर, वाटर, मेटल, रॉक्स एट्सेट्रा. जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं वो अबायोटिक रिसोर्स हैं जो ह्यूमन बीइंग के यूज़ में आते हैं. जैसे अर्थ. अर्थ का सेंस हो गया ज़मीन से, मिट्टी से.
या कह सकते हैं लैंड से, और एयर, वाटर, मेटल्स, रॉक्स एटसेट्रा। क्वेश्चन थर्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन in about 120 words. So first question is explain land use pattern in India and why has the land under forest not increased much since 1960-61. So about 45% of land is used as net zone area. 45% जो land है वो नेट जोन एरिया मतलब उसको यूज़ किया जाता है एज एग्रीकल्चर वर्क के लिए। एग्जाम्पल फार्मिंग, about 22% of the land is under forest and rest of the land is used for various purposes। 22% जो land है वो फॉरेस्ट के तौर पर है और रेस्ट ऑफ द लैंड है वो अदर पर्पजेज में यूज़ हो रहा है, जैसे लाइक हाउसिंग, रिक्रिएशन, मनोरंजन के लिए, घर बनाने के लिए, एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ मीन्स जो भी कल कारखाने हैं वो सब। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन सब्सिक्वेंटली इंक्रीज इन डिमांड फॉर रिसोर्स इज द मेन रीज़न दैट फॉरेस्टेड लैंड हैज़ नॉट इंक्रीज्ड मच ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब डे बाय डे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिससे क्या है रिसोर्स पे दबाव पड़ता जा रहा है, और जो भी फॉरेस्टेड एरिया है उनको बहुत ज़्यादा क्या है इंक्रीज़ नहीं किया जा सका इस पीरियड में। Now second, how have technical and economic development led to more consumption of resource? Economic development creates demand for various resources, and technical development gives the the know how to exploit those resources। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या करता है, क्रिएट करता है, क्रिएट्स डिमांड फॉर वेरियस रिसोर्सेज, वेरियस रिसोर्स के लिए डिमांड क्रिएट करता है। और टेक्निकल डेवलपमेंट क्या करता है, किसी भी रिसोर्स को कैसे यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको कैसे यूज़ करें। थर्स टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट टुगेदर लीड मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्स। और जब दोनों मिल जाते हैं, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्निकल डेवलपमेंट की बात करें तो दोनों से क्या होता है, रिसोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रलाइजेशन वो किया जाता है, मतलब रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसके हेल्प से। सो दिस इज चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन। Now solution of chapter second, class 10th, chapter second, subject geography, forest and wildlife resources. So multiple choice question. First question is, which of these statements is not a valid reason for the depletion of the flora and fauna? First, agriculture expansion. B, large scale development projects. C, grazing and fuel wood collection. D, rapid industrialization and urbanization. Answer C is correct, grazing and fuel wood collection। Question second, which of the following conservation strategies do not directly involve community participation? First means A, joint forest management, B, चिपको movement, C, बीज बचाओ आंदोलन, D, demarcation of wild sanctuary। Answer D is correct, demarcation of wildlife sanctuary means। Question second, match the following animal with their categories of exercise। First, black buck, there is answer already given। First, match to see endangered। Second, Asiatic elephant, D, endemic। Third, Andaman wild pig, match to E, sorry, Asiatic elephant, D, vulnerable। Third, Andaman wild pig, match to option E, endemic। Fourth, Himalayan brown bear, match to B, rare। And fifth, pink and duck,
Match to option A, extinct. Match the following. Question third. First, reserved forest. Match to B, are regarded as most valuable as far as conservation of forest and wildlife resources. Now second, match to C. Second, protected forest. Forest lands are protected from any further depletion. Now third, unclassed forest. Match to A. Third, A. Other forest and wasteland belong to both government and private individual and communities. Question 4. Answer the following question in about 30 words. What is biodiversity? Why is biodiversity important for human lives? Answer. The variety of flora and fauna is in a given geographical area is called biodiversity of that area. अब यहाँ पे कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, जियोग्राफिकल एरिया में जो भी फ्लोरा एंड फौना की वैरायटीज़ हैं, ठीक है, और किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, तो वो आपका क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी उसको कहते हैं. ईच स्पीसीज ऑन दिस अर्थ लिव्स इन अ सिस्टम ऑफ interdependency on various biotic or biotic factors. Human beings also depend on several biotic or biotic factors for their survival. अब इसमें सारे जो भी प्रजातियां हैं वो क्या एक दूसरे से वो इंटरडिपेंडेंट हैं, मतलब वो जुड़े हुए, उनका एक सिस्टम है जो बायोटिक और बायोटिक फैक्टर के साथ वो जुड़े हुए. ह्यूमन बीइंग भी डिपेंड है बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स पर अपने सर्वाइवल के लिए. We may be directly taking some resource from certain species, but we indirectly depend on many other species. Hence, biodiversity is important for human lives. हम क्या हैं, हम लोग कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं या स्पीसीज़ हैं जिस पर हम लोग डायरेक्टली डिपेंड हैं, बट कुछ ऐसे भी रिसोर्स हैं जिस पर क्या हम लोग इनडायरेक्टली भी डिपेंड रहते हैं, उसको यूज़ करते हैं इनडायरेक्टली. इसलिए बायोडाइवर्सिटी क्या ह्यूमन लिव्स के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है. हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्टेड द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना? एक्सप्लेन. कैसे ह्यूमन एक्टिविटी है जो फ्लोरा एंड फौना को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, बताइए. तो वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव रिजल्टेड इन डिक्लाइन ऑफ फॉरेस्ट कवर. ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी की वजह से फॉरेस्ट को क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है. वस्ट ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड बीन had been cleared to make way for farmland and for making new houses, factories and infrastructure. Mining is other human activity which has destroyed forest in vast area. Thus human activity have resulted in significant depletion of flora and fauna. Means फॉरेस्ट को क्या कर रहा है, ह्यूमन बीइंग क्लियर कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है अपने अकॉर्डिंग, फैक्ट्रीज, हाउस, घर और बिल्डिंग बना रहा है, माइनिंग एक्टिविटी कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ये सब जो है फ्लोरा और फौना वो अफेक्ट हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. इन सभी एक्टिविटी से वो क्या है, हम वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं कह सकते हैं, या उनका पतन हो रहा है कह सकते हैं. Question number 5. Answer the following question in about 120 words. Describe how community have conserved and protected forest and wildlife in India. बताना है कि कैसे कम्युनिटी जो है कंजर्व कर रही है, मतलब कंजर्व करती है और प्रोटेक्ट करती है जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है इंडिया में. तो देखते हैं, बहुत सारी लोकल कम्युनिटी होती है जो क्या करती है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करती है, प्रोटेक्ट करती है. तो लेट्स डिस्कस. Many local communities have recognized the significance of conservation for their long-term survival. Local communities are contributing significantly in conservation at many places. For example, the Bisnois of Rajasthan protect black buck, chinkara and peacocks quite jealously.
Nature worship is an age-old tradition of many tribes. By doing so, they help in conservation of forest. Chipko movement is another example of community initiative in conservation. Joint forest management has been practiced in Odisha since 1988 and has bore fruits for conservation. तो इसमें बता रहा है कि जो स्थानीय समुदाय हैं वो क्या करते हैं, और जो आसपास के जो जंगल हैं, स्पीसीज हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा है कि राजस्थान के बिश्नोई है जो ब्लैक बक को प्रोटेक्ट कर रहा है, चिंकारा है, पीकॉक है, जिनको बचाया जा रहा है। नेचर की वर्शिप की जाती है, मतलब प्राकृतिक चीज़ों की पूजा की जाती है, लोगों की परंपरा रहती है, जितनी भी जनजातियाँ तो उससे भी लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और बहुत से ऐसे मूवमेंट है जिसकी वजह से कह सकते हैं फॉरेस्ट को बचाया गया है। जैसे चिपको मूवमेंट है कंजर्वेशन के लिए, जो फॉरेस्ट को सेव करने के लिए, ट्रीज को सेव करने के लिए एक एग्जाम्पल है, जो इनिशिएटिव था, शुरुआत की गई थी। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है जिसको प्रैक्टिस किया था उड़ीसा में, जिसका कह सकते हैं 1988 में ये स्टार्ट हुआ था कंजर्वेशन। ये भी कह सकते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देता है। राइट अ नोट ऑन गुड प्रैक्टिस टुवर्ड कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब आपको इसका कह सकते हैं कि आंसर एक्सप्लेन करना है। राइट अ नोट ऑन गुड प्रैक्टिस टुवर्ड कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए जो भी मतलब स्टेप लिए गए हैं उस पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो देखते हैं हम लोग। ऑल द गुड्स प्रैक्टिस all the good practices towards conservation of forest and wildlife should include an active participation for all the stakeholders, government agencies, local inhabitants, industrialists, and wildlife enthusiasts are the important stakeholder in forest management. The government should formulate rules and regulations and provide system and machineries to implementation conservation program. The local inhabitants should always be included in conservation program because their survival depend on it. Industrialists and wildlife enthusiasts should also be taken under the fold of conservation program. A coordinated effort by all the stakeholders will give better रिजल्ट। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट और बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और स्टेक होल्डर्स हैं, एजेंसीज़ हैं, संस्थाएं हैं, स्थानीय संस्थाएं भी हैं जो क्या कर रही हैं, अब वो अपना अपना प्रोग्राम बनाई हैं, मैनेजमेंट अपना बनाई है, जो क्या कर रहा है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन को बना दिया है, जिससे कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को बहुत हद तक जो उनका डिप्लेशन है उसको क्या है कंट्रोल किया गया। बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं और जो भी इनहेबिटेंट्स हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के और जो फॉरेस्ट हैं उनको कंजर्व किया जा रहा है, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनके लिए कंजर्वेशन प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। और जितने भी कह सकते हैं संस्थाएं हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं और गवर्नमेंट है, सब मिलकर एक कोऑर्डिनेट कर वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से जो कह सकते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ उनके बेटर फ्यूचर के लिए वो वर्क कर रहे हैं ताकि एक बेटर अच्छा एक रिज़ल्ट आए। नाउ चैप्टर सेकेंड ओवर। थैंक यू क्लास।